Friends, today I discuss the salt bleaching powder. Okay, bleaching powder. You know bleaching powder? Bleaching, bleaching powder. Chemical formula is CaOCl2. Chemical formula is CaOCl2. Its chemical name is calcium oxychloride. Chemical name is calcium oxychloride. How bleaching powder is prepared? When chlorine gas passed into the slack line, bleaching powders are formed. Preparation. When chlorine gas is passed into slack line, bleaching powder is formed. Bleaching powder are formed. Slack line, do you know? Calcium hydroxide is called slack line. Chlorine gas passed, Cl2, CaOCl2 plus water. Bleaching powder is formed. Bleaching powder. ब्लीचिंग पाउडर किस तरह का होता है? येलोइश व्हाइट कलर का पाउडर होता है जो जिससे क्लोरीन गैस स्मेल आते रहते हैं. क्लोरीन का स्मेल जो होता है वो पंजेंट स्मेल होता है. आपको सुनने के बाद जैसे आपको आंखों से आंसू जैसे गिरने लगता है. पंजेंट स्मेल होता है. इट इज व्हाइट येलोइश पाउडर. It has pungent smell due to evolution of chlorine gas. Due to evolution of chlorine gas, Cl2 gas के कारण इसका स्मेल होता है. Okay. Then next, सपोज इस पे क्वेश्चन इस तरह पूछ सकता है आपको एग्जाम में. A gas X passed into slacked line, okay. Why compound is formed? Compounds are formed which is used as disinfectant for water, okay, and kill the germs. Identify XY. X is your chlorine gas, Cl2 passed into slack line. This is X, CaOCl2 plus water. This is your white bleaching powder. Okay, identify XY. This is your
bleaching powder. Identify X what? X is your chlorine and Y is your bleaching powder, CaOCl. ओके, इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकते हैं बोर्ड एग्जाम में आपको। What happens when bleaching powder is kept in open air? Bleaching powder, when bleaching powder को आप open air में छोड़ देंगे तो एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करके क्लोरीन गैस इवॉल्व करेगी। What happens when bleaching powder kept in air? Bleaching powder react with atmospheric carbon dioxide gas and chlorine gas are evolved. Bleaching powder reacts with atmospheric CO2 to release Cl2 gas which has pungent smell, आपने देखा होगा जो नगर निगम का पानी वाटर सप्लाई होता है तो हम उस वाटर सप्लाई जैसे टैप खोलते हैं तो उसमें क्लोरीन गैस का स्मेल आते रहता है, क्योंकि वाटर में ब्लीचिंग पाउडर मिला के सप्लाई किया जाता है। बरसात के दिनों में ज्यादा जर्म्स फॉर्मेशन होता है, इसलिए उसमें ब्लीचिंग पाउडर पानी में मिलाया जाता है, वो जर्म्स को किल कर देता है। CaOCl2 plus CO2 gives CaCO3 plus Cl2 chlorine gas. Okay. Action of heat, action of acid, bleaching powder reaction with acid. ब्लीचिंग पाउडर अगर एसिड से रिएक्ट करेगा अभी तो क्लोरीन गैस निकलेगा। CaOCl2 plus H2SO4 gives CaSO4 plus H2O plus Cl2. CaSO4 plus H2O plus Cl2 chlorine gas. Okay. What are the use of bleaching powder? What are the use of bleaching powder? Uses of bleaching powder. It is used as bleaching agent. Bleach माने to remove the color. तो कलर को रिमूव करने के लिए ब्लीचिंग पाउडर का यूज किया जाता है। It is used as bleaching agent to remove color. Okay. It is used as disinfectant for drinking water. It is used as डिसइंफेक्टेंट के रूप में यूज होता है इसका, और इसका यूज होता है फॉर प्रिपरेशन ऑफ क्लोरोफॉर्म बनाने में भी यूज किया जाता है। It is used for preparation of chloroform. क्लोरोफॉर्म का केमिकल फॉर्मूला होता है CHCl3, that is called chloroform. These are the use of bleaching powder
ओके, पहले पहले समय में मॉस्किटो मच्छरों को मारने के लिए भी इसका यूज किया जाता था, ब्लीचिंग पाउडर का। लेकिन आजकल इसका इफेक्ट इतना कम हो गया कि मच्छर तो मरता ही नहीं बिल्कुल। Now next compound is plaster of Paris. प्लास्टर ऑफ पेरिस, आपने नाम सुना होगा प्लास्टर ऑफ पेरिस का। जनरली जब बोन फ्रैक्चर करता है तो उसको बोन को फिक्स करने के लिए डॉक्टर जो है ना प्लास्टर करते हैं। वो जो पाउडर जो यूज किया जाता है उसको प्लास्टर ऑफ पेरिस बोलते हैं, बोन को फिक्स करने के लिए, फ्रैक्चर्ड बोन को फिक्स करने के लिए। और हाउस में आजकल यूज किया जा रहा है डेकोरेटिंग करने के लिए, पीओपी किया जा रहा है, वॉल के पीओपी किया, वॉल पे किया जाता है पीओपी, प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस, its chemical formula is CaSO4 half H2O calcium sulfate hemihydrate. Its chemical name is calcium sulfate hemihydrate. Why it is called plaster of Paris? प्लास्टर ऑफ पेरिस को प्लास्टर ऑफ पेरिस क्यों बोला गया? क्योंकि प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है वो जिप्सम से बनता है और ये जिप्सम जो है पेरिस में पाया गया, तो इसलिए इसका नाम पड़ा प्लास्टर ऑफ पेरिस। ओके, प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्रिपरेशन, when gypsum is heated, when gypsum is heated at 100 degrees C, plaster of Paris is formed. Plaster of Paris is formed. प्लास्टर ऑफ पेरिस बने। अब देखिए जिप्सम CaSO4 dot twice H2O, that is called gypsum. जिप्सम बोलते हैं इसको। अब इसको 100 डिग्री सी पे हीट करेंगे। 100 डिग्री सी इसका टू 373 केल्विन, 0 डिग्री सी इसका टू 273 केल्विन और 100 373 केल्विन, और इसको हम केल्विन में कन्वर्ट करेंगे तो 373 केल्विन। ओके, अब इसको हीट करेंगे। अब देखिए CaSO4 dot half H2O and 3/2 H2O, मैथमेटिक्स आता है, उस दोनों को अगर जोड़ेंगे तो आपको twice H2O हो जाएगा, half H2O और 3/2 H2O। तो ये आपका 3/2 H2O वाटर निकल गया, ये आपका बन गया प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस, ओके। ये व्हाइट कलर का पाउडर होता है। अब प्लास्टर ऑफ पेरिस में वाटर डालते हैं तब वो हार्ड सॉलिड मास बन जाता है, तो उसको बोलते हैं सेटिंग, प्लास्टर को सेट करना। तो व्हाट हैपेंड व्हेन प्लास्टर ऑफ पेरिस में आप वाटर डालोगे तो क्या बनेगा? व्हाट हैपेंड व्हेन वाटर इज एडेड टू प्लास्टर ऑफ पेरिस? वाटर is added to plaster of Paris, it becomes hard solid mass, it becomes hard due to formation of gypsum, again gypsum बन जाएगा, जिप्सम बनेगा। अब देख लीजिए CaSO4 half H2O plus 3/2 H2O, ये आपका बन जाएगा CaSO4 dot twice H2O, यानी जिप्सम में कन्वर्ट करेंगे। हमने देखा होगा प्लास्टर ऑफ पेरिस पाउडर होता है, व्हाइट कलर पाउडर होता है। अब उसमें पानी डालते हैं, पानी डालने के बाद छोड़ देते हैं तो हार्ड सॉलिड मास बन जाता है। तभी तो बोन को फिक्स करने में, फ्रैक्चर बोन को फिक्स करने में यूज किया जाता है, इसका स्टैचू बनाने के रूप में यूज किया जाता है इसका, है? इसका यूज यही किया जाता है।
तो इसको बोलते हैं सेटिंग ऑफ, ये आपको प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसमें वाटर डालने के बाद हार्ड बन जाता है जिसको, और प्लास्टर ऑफ पेरिस को काफी अगर हीट कर देंगे ग्रेटर देन 100 डिग्री वो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट प्लास्टर ऑफ पेरिस को हीट कर देंगे, स्ट्रॉन्ग हीटिंग। What happened when plaster POP, plaster of Paris is a strong heating, क्या हो जाएगा? प्लास्टर ऑफ पेरिस को स्ट्रॉन्ग माने मोर देन 100 डिग्री सेल्सियस पे हीट कर देंगे तो वो अपना हाफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर लूज कर लेगा और एनहाइड्रस कैल्शियम सल्फेट बन जाएगा, उसको डेड बर्न प्लास्टर बोलते हैं उसको। CSO4 हाफ H2O इसको ग्रेटर देन 100 डिग्री सेल्सियस पे हीट कर देंगे तो आपके ये बन जाएगा CSO4 प्लस हाफ H2O, that is called anhydrous copper sulfate, anhydrous calcium sulfate। इसी को डेड बर्न प्लास्टर, इसी को डेड बर्न प्लास्टर बोलते हैं, डेड बर्न प्लास्टर। ओके, क्वेश्चन arises why plaster of Paris is stored in moisture proof container। मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर में प्लास्टर ऑफ पेरिस को क्यों स्टोर किया जाता है? क्योंकि मॉइस्चर को ये एब्जॉर्ब कर लेगा तो हार्ड सॉलिड मास जिप्सम में चेंज कर जाएगा। तो टू प्रिवेंट द हाइड्रोलिसिस इट इज केप्ट इन मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर। क्वेश्चन इज arises plaster of Paris is stored in moisture proof container, explain why। Okay, question is that answer is plaster of Paris absorb moisture, plaster of Paris absorb moisture to become hard solid mass gypsum to, okay, so it is stored in moisture proof container। CSO4 half H2O plus 3/2 H2O वाटर को एब्जॉर्ब कर लेगा, ये आपका बन जाएगा CSO4 twice H2O जिप्सम में चेंज कर। ओके, ये आपका सॉल्व हो गया। अब मैं नेक्स्ट क्लास में आपको क्वेश्चन बताऊंगा, इस पे बेस्ट क्वेश्चन इस चैप्टर पे सारी डिस्कशन करूंगा। ओके, थैंक यू।